Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo Bharat International Public School. Now, continue my chapter number 1 for class 12. Now, today, this chapter will be completed. आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें. लास्ट टॉपिक जो बच जाता है इसका, अभी तक हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा. एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये हमने कंप्लीट कर लिए. ओके, नाउ टुडे we discuss the new topic is the binary operation. Okay, students, now binary operation, what is the binary operations? First thing, binary means, you know the word by means two. By plus nary, bi by that means two. In mathematics, by means two. That means this operation operates for two elements, and two elements are always given in a set Cartesian product of two sets A into B. Cartesian product of A into B given by A comma B, C comma D, 1 comma 2, 1 comma 3, like this one. Okay, so first we define the definition of binary operation. Now binary operation, a binary operation given by star. यहाँ पे हम एक symbol use कर रहे हैं. This star is called the symbol for binary operation. On a set A is the any set, is a function. First thing, what is A? A is the function. ये फंक्शन होना जरूरी है, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन द फंक्शन. ये फंक्शन पर ही डिफाइन करेंगे. स्टार गिवन बाय ए इंटू ए, बिकॉज ए इंटू ए मीन्स ए कॉमा बी. देयर आर टू एलिमेंट्स आर गिवन एंड सच दैट ए इंटू ए इज, वापस से हमें उसी सेट का एक एलिमेंट मिलना चाहिए. अगर आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हो टू एलिमेंट्स के लिए, तो वापस उसी सेट का एक एलिमेंट आना चाहिए. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ए इंटू ए मीन्स इम्प्लाइज ए. वापस से ए लिखा है मैंने. नाउ वी डिफाइन बाय स्टार ए कॉमा बी इन स्मॉल ब्रैकेट गिवन बाय ए स्टार बी. क्लियर? इट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. बट दिस डेफिनेशन also we already now next defined by the operations for in mathematics plus, minus, into and division. Plus, where r is the real number, r into r implies to r, a comma b means a plus b. Plus is the operation. अगर हम इस प्लस को एक बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, ये a प्लस b. Similarly, minus a into r, this arrow is the r, and again a comma b is equal to a minus b. Similarly, for a into b, a comma b, r into r implies to r equal to a into b. So a into b. But for division, is the binary operation is not defined. Why? Because a upon b is not, again we get the real number, because for b is not, for b if 0, अगर b 0 होता है तो वो 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा. अगर विदाउट 0 रियल नंबर है तो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो a अपॉन b वापस से रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन a अपॉन b अगर मैं b 0 लेता हूँ तो a अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वापस एक रियल नंबर हमें नहीं मिलता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, सो बट डिवीजन a क्रॉस r, a r is not belongs to r, so a comma b given by a upon b where b is not equal to 0 is not a defined operation as for b equal to 0. So for real number, binary operation only defined for plus, minus and into, but not defined for division. But it is defined for
डिवीजन व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप 0 के अलावा कोई नंबर लेते हैं तो आपको वापस एक रियल नंबर मिलता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। आपको प्रूव करना है कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन y इज नॉट डिफाइंड? इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और n2 के लिए तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये डिफाइन नहीं होता। एक्सरसाइज 1.4 को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। एक काम करते हैं, वी टेक द 3 and 4 where 3 and 4 is the belongs to n। अगर हम प्लस की बात करते हैं 4 प्लस 3, 4, so we take the plus 3 plus 4। what is 3 plus 4 is the 7। again 7 is the belongs to n। हमने 3 और 4 को लिया, वापस 7 मिला। 7 is the again belongs to natural number। next 4 into, suppose 3 into 4, 3, 4, 3 into 4 is equal to 4 into 3 and 12। 12 is again belongs to n। वापस से एक नेचुरल नंबर। बट सब्ट्रैक्शन के लिए हम ऐसे क्यों इसको शो करना है कि इज नॉट डिफाइंड फॉर बाइनरी ऑपरेशन। 4 प्लस n multiplication, it is the binary operation। but for minus, suppose we take same number 3 and 4, 3 minus 4 is equal to -1 and suppose we take the number, this is the -1, but -1 is not belongs to n, so it is not the binary operation for every natural number। now similarly for division, division means 3 and 4, 3 upon 4 is not belongs to n। 3 upon 4 is a real number, not a natural number। इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस और डिवीजन के लिए हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। अदरवाइज हम अगर ये देखते हैं कि वापस इन दो एलिमेंट्स के लिए वापस से नेचुरल नंबर आता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो हम ये कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करता है, अदरवाइज नो। तो यहाँ प्लस और माइनस इनटू के लिए हो रहा है, लेकिन माइनस और डिवीजन के लिए नहीं। ये हमें प्रूव करना था, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। इट इज द क्लियर। सेकंड एग्जांपल, सो दैट स्टार गिवन फॉर रियल नंबर r क्रॉस r implies to r given by a comma b is equal to a plus 4b square is a binary operation। मुझे ये प्रूव करना है क्या ये वाकई में बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो दैट मीन्स ये तो आप देख ही सकते हो, अगर मैं 3 और 4 या 7 और 8 कोई भी नंबर लेता हूँ, a b आर एनी रियल नंबर, सपोज लेट a comma b belongs to r, any real number, so a b is given by a plus 4b square। a और b कोई भी नंबर लो, वापस क्या आएगा, belongs to r। ये वापस से एक रियल नंबर ही आपको मिलेगा। ओके, सो a plus 4b square is a binary operation for real number। next so that this is the symbol r into r implies to r given by a comma b is the maximum of a comma b। आपको ये देखना है a और b में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, और इसी का ऑपोजिट ले रहा हूं मैं, दिस इज द सिंबल नाउ फॉर द मिनिमम ऑफ a एंड b। तो आपको ये देखना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। इज दिस वेरी सिंपल, यू टेक द एनी रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर के लिए, डिफरेंट रियल नंबर के लिए या सेम रियल नंबर के लिए आप मैक्सिमम मिनिमम नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिंपल मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर लेता हूँ 7 and 8, इसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर है 8, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज 8 and 8 इज द अगेन रियल नंबर, सो इट इज द बाइनरी ऑपरेशन। नाउ यहाँ पे मैंने इसी के लिए एक टेबल यूज की है फॉर ए मैक्सिमम। दिस सिंबल इज द मैक्सिमम फॉर दिस। देयर आर 3 नंबर, वी टेक 3, 5, 7 and 3, 5, 7। सो फर्स्ट वी टेक 3 and 3 के साथ में 3। व्हाट इज द मैक्सिमम
of 4, 3 and 3 दोनों सेम नंबर है तो आंसर इज द अगेन 3. 4, 3 and 5 maximum is the 5. 3 and 7 maximum number is 7. 5 and 3 maximum is 5. 5 and 5 maximum is 5. 5 and 7 maximum is 7. 7 and 3 maximum number 7. 7 and 5 maximum is 7. 7 and 7 maximum is 7. ये टेबल आप 4 नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं, 7 नंबर के लिए भी यूज सकते हैं. सिमिलरली हम ऐसे ही हम चाहें तो इसको मिनिमम के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये तो बात हम हो गई कि डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फॉर रियल नंबर्स एंड फॉर एनी सेट व्हेन गिवन बाय a into a this implies to a. एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके रेस्पेक्टिव वापस वही एलिमेंट आता है जो एलिमेंट उसी सेट के अंदर लाई करता है, तब तो हम ये कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन उसके लिए ऑपरेट होता है. अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ ऑपरेट नहीं होगा. आगे मैं बात करता हूँ एक डिफरेंट डेफिनेशन. कुछ प्रॉपर्टीज हमने छोटी क्लासों में पढ़ी थी. कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सपोज A स्टार B is equal to B star A. That means it is the commutative. And for associative A star B star C, first we take these two numbers and equal to A star B and star C. Then these both are always equal for every ABC like they belongs to any set A. Then it is the binary. This property lie for associative and commutative. Otherwise it is not associative and not commutative. यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको. Now 4 plus and 4 into is the commutative. मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ commutative 4 नेचुरल नंबर n. फॉर नेचुरल नंबर n के लिए प्लस और इंटू कॉम्यूटेटिव है, बट माइनस n डिवीजन के लिए इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव. यू टेक एनी टू नेचुरल नंबर, सो एड टू नेचुरल नंबर, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर बिकम अगेन अ नेचुरल नंबर. आप कोई भी नंबर लेके उसको चेक कर सकते हैं. सपोज वी टेक 9 and 4, तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 9 plus 4? 9 plus 4 is 13. 13 is the again natural number, and 4 plus 9 is again same number, so that means it is the commutative and also natural number. यहाँ हम बात करते हैं that means A plus B is equal to B plus A. So that means A star B is equal to B star A. It is the commutative. Into की बात करते हैं. Suppose we take the two natural number. A into B is equal to B into A. Means A star B is equal to B star A. You take any two natural number. So what is the product of two natural number? Suppose 3 into 4. 3 into 4 is 12. And 4 into 3 is again 12. That means both are equal. 3 into 4 and 4 into 3 both are equal. That means it is the commutative. 4 same commutative, associative. 4 we take the 3 number. Suppose simple we take the number 1, 2 and 3 are the belongs to natural number n. It is the associative for plus and into. देखते हैं 1 plus 2 plus 3. So what is the answer? 1 plus 2, 3, and 3 plus 3 is 6. Now 1 plus 2 plus 3. 1 as it is. Now first add 2 and 3. So 3 plus 2 is 5 and 5 plus 1 is 6. Both are equal. 6 equal to 6. That means these are associative.
Similarly, you take for multiplication 1 into 2 into 3. 1 into 2, 2, and 2 into 3 equal to 6. 1 into 2 into 3 now is equal to 1 into 3 into 2, 6, and 6 into 1 again 6. Both are equal. That means it is there. एसोसिएटिव, ये हमने देखा नेचुरल नंबर के लिए ये यूज हो रहे हैं एसोसिएटिव, लेकिन अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कॉम्यूटेटिव की नेचुरल नंबर्स के लिए, तो नेचुरल नंबर यहाँ पर माइनस के लिए और डिवीजन के लिए नहीं होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं 3 minus 4 is equal to -1, but 4 minus 3 is equal to 1, but 1 and -3 are not equal, and -1 is not belongs to natural number, नेगेटिव नंबर। अगर एक के लिए भी अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो दैट मींस इट इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव। केवल एक एग्जांपल लेके आपको चलना है, सभी नंबर्स के लिए आपको प्रूव नहीं करना है। सिमिलरली फॉर डिवीजन 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3 एंड आल्सो नॉट बिलोंग्स टू n, इक्वल भी नहीं है और नेचुरल नंबर n के लिए बिलोंग्स भी नहीं कर रहा। दैट मींस दीज आर नॉट commutative for division. So for negative and subtraction and division are not commutative and not associative. But for addition and for multiplication is commutative and for associative for every natural number. It is clear? So it is the introduction and some example we introduce for the binary operation. Now the last is the given the identity element. The next my definition is for identity element. So what is the identity element? Identity element. Identity element means suppose we take a plus 0. A is the any real number. अगर मैं किसी भी रियल नंबर में 0 प्लस करता हूँ या 0 प्लस a करता हूँ तो वापस आपको क्या मिलेगा? a। एक ऐसा नंबर जो उसके साथ में वापस ऐड करने पे वही नंबर आपको मिलता है, तो वो नंबर उस नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? 0। 0 इज द ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए रियल नंबर फॉर एडिशन। सिमिलरली फॉर इनटू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। दैट मीन्स 1 4 into 1 is the identity element, and this identity element for denoted by E for a binary operation. That means यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ A plus E is equal to A is equal to E plus A. For into A into E is equal to E into A is equal to A. E is the denoted by identity element for a binary operation. यहाँ E यहाँ पे वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि E को अपन डिनोट कर रहे हैं। प्लस और इंटू के लिए अपन सिमिलरली एक सिंगल नंबर लेके चल रहे हैं 0 और 1, पर E यहाँ पर E is the identity element for a only binary operation, जो मैंने एक सिंबल की फॉर्म में यूज किया है और आपको भी E ही यूज करना है। ये तो बात होगी प्लस और इंटू के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, तो एवरी रियल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है कि जो किसी भी नंबर को वापस उसी नंबर से किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसा वापस नंबर वही आ जाए। ओके, बट इनवर्स एलिमेंट जरूर आ सकता है। अगर हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, अगर मैं a को वापस a से डिवाइड करता हूं तो वापस मुझे a मिलेगा। मीन्स a इंटू 1/a इज इक्वल टू e। व्हाट इज e? इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स इट इज द 1।
ऐसे ही प्लस की बात करते हैं तो अपन यहाँ बात करते हैं इनटू के लिए, सॉरी नॉट प्लस, सो दिस 1 upon a is given by a minus 1. So this a minus 1 is called the inverse of a. ये बात हो गई यहाँ पर डेफिनेशन फॉर इनवर्स की बात हम कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिया और इनवर्स आपके लिए कंप्लीट हो गया। तो फाइनली ये बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मींस एक्सरसाइज 1.4 आज अपन ने कंप्लीट कर ली, यानी कि हमने एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आज 12th क्लास के लिए मैंने कंप्लीट कर लिया। कोई भी डाउट्स हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मे बी कल मैं आपके स्कूल में एक बार आऊँगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस चैप्टर के रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बेसिस पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।